اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام 1423 ہجری۔ محرم الحرام کو اسلامک کیلنڈر میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قمری کیلنڈر جو کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ اور اگر اس حقیقت کو مد نظر رکھا جائے تو مسلمانوں کو قمری کیلنڈر کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ شمسی کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے اس کو۔ اور جو مسلمانوں کے لیے کیلنڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایجاد ہوا، وہ ہجرت نبی سے شروع ہوتا ہے، قمری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ اور قمری کیلنڈر محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام کو محرم الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں قتل و غارت حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور محرم الحرام کی بہت ساری اور بھی خصوصیات ہیں، جو ہر مہینے کی اپنی خصوصیات ہیں اور اپنی برکات، اپنی رحمتیں ہیں، لیکن جو اہمیت، جو خصوصیت محرم الحرام کو حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہے۔ اسلام کے بڑے بڑے واقعات جتنے بھی گزرے ہیں وہ محرم الحرام 10 محرم الحرام کو ہی تقریباً ہوئے ہیں۔ دنیا وجود میں 10 محرم الحرام کی آتی ہے، اور پھر دنیا کا نظام 10 محرم الحرام کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا 10 محرم الحرام کو بنایا جاتا ہے، اور 10 محرم الحرام کو اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اور پھر پیغمبروں کا سلسلہ جتنا بھی چلا ان میں اکثریت 10 محرم الحرام کو ہی نبوت ملی یا وجود میں آئے، جیسا بھی ہے۔ بہرحال لنک ہر ایک پیغمبر کا 10 محرم الحرام کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو پار کیا 10 محرم الحرام کو، جب فرعون اور فرعونی ان کا پیچھا کر رہے تھے اور انہیں جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام برسوں کشتی بناتے رہے، اور برسوں کشتی بنانے کے بعد جب سیلاب آتا ہے تو نوح علیہ السلام اس کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، اور برسوں نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں گردش کرتے ہوئے 10 محرم الحرام سے جا کے جودی پہاڑ سے ٹکراتی ہے، ٹھہرتی ہے۔ یعنی زندگی ایک دفعہ بے ترتیب ہو کے پھر ترتیب میں آتی ہے، اور پھر زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے، وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں اور جودی پہاڑ کے ساتھ، اور 10 محرم الحرام کو۔ اس طرح 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو میدان عرفات میں بہت زندگی گزارنے کے بعد، بہت جدائی برداشت کرنے کے بعد میدان عرفات میں ملایا جاتا ہے ان کو۔ اور اس طرح 10 محرم الحرام کی اگر اہمیت گننا شروع کر دیں تو شاید کہ زندگی ختم ہو جائے اور اس کی اہمیت اور فضیلت ختم نہ ہو۔ بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ بعض اس میں کہ ابتدائی 10 ایام کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن مستحب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اس کے 9 اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کی ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو کہیں مشابہت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 10 کا بھی رکھ لیا کرو۔ یہ 9 اور 10 محرم الحرام بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بہت فضیلت اور اہمیت لے کے چلتا رہا ہے، اور بالآخر اس کا
फजीलत नहीं ख़त्म होती किसी चीज़ की, लेकिन जो बड़ी कुर्बानी 9-10 मुहर्रम अल हराम को है वो मैदान करब व बला में है, जो कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की खातर, दीन की खातर अल्लाह के हुक्म के ताबे पेश की। बड़ी ही दिलसोज और बड़ी दुखी दास्तान थी और बड़े ही बेदर्दी और बेरहमी से अहले बैत का कत्ल आम हुआ वहाँ। वो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है और वो कुर्बानी जो 9 और 10 मुहर्रम अल हराम को दी गई वो क़यामत तक याद रखने वाली। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करब व बला के बाद, कि ऐसी कुर्बानियाँ बार बार हुआ नहीं करती और ऐसी हस्तियाँ मैदान में बार बार उतरा नहीं करती। सर कलम कर दिया और छोटे बच्चों की गर्दनें उड़ा दी गई, औरतों के साथ बुरा सलूक किया गया और नेज़े पे लटकाया गया इमाम हुसैन के सर को काट के। ये एक बड़ी दिलसोज थी और ये ऐसे हुई कि यजीदियों ने कत्लेआम किया। और फिर उस बात को छोड़ के एक अगली बात शुरू होती है। लोग उसको बहुत बड़ा खसारा समझते हैं इस्लाम का, लेकिन कुछ 2 तबके हैं इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम का बहुत बड़ा खसारा हुआ इमाम हुसैन की शहादत के बाद, लेकिन अक्सरियत का ख्याल ये है कि इस्लाम की सरबुलंदी हुई शहादत के बाद। और असल बात भी यही है कि शहादत अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में जब बच्चे आपकी गोद में खेल रहे थे तो आपने पेशन गोई दे दी थी कि मेरे इस बच्चे को मेरे अपने ही लोग कत्ल करेंगे। और बड़ा दिलसोज और बड़ा दिल जिगर छलनी कर देने वाला वाक़या है। इस पे रोशनी डालने का किसी की कम से कम मेरे अंदर हिम्मत और ज़रूरत नहीं है कि मैं इस पे इतनी रोशनी डालूं और इतनी ज़्यादा बात करूं। बहरहाल इस्लाम की सबसे बड़ी शहादत इमाम हुसैन की शहादत 10 मुहर्रम अल हराम को, और आज 10 मुहर्रम अल हराम है। अब समझ नहीं आ रही है, कुछ लोग इसमें 10 मुहर्रम अल हराम को सोग मना रहे हैं और सोग मनाने का भी एक अनोखा तरीका ईजाद किया हुआ है और कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। बहरहाल दोनों तबके अपनी अपनी जगह मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। दुख उनको भी है जो रोड पे आके वाह वेला करके चीखो पकार करके सोग नहीं मना रहे, उनको भी उतना ही दुख है जितना चीखो पकार करके सोग मनाने वालों को है। लेकिन बात यही है कि इमाम हुसैन के अल्फाज में ये है कि ये क़यामत तक सज़ा में रहेंगे और चीखो पकारा फगा करते रहेंगे और अपने किए पे पछताते रहेंगे, लेकिन इनको माफ़ी नहीं होगी और दुनिया में ये इनकी सज़ा है। ऐसे है। बहरहाल अगर सोग मनाने की बात की जाए तो मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है कि इस्लाम में इन्हें मुर्दा मत कहो ये ज़िंदा हैं, शहीदों को मुर्दा मत कहो ये ज़िंदा हैं और अल्लाह के यहाँ इन्हें रिज़्क़ दिया जा रहा है। और अगर अल्लाह ला यशुरून, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। अल्लाह के यहाँ इनकी इतनी अहमियत वाली इतनी बड़ी ज़िंदगी है और इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 लोगों पर खुसूसी इनाम फरमाया और उसमें शोहदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह फातिहा में कि अनअमत अलैहिम, कि उन लोगों में शामिल कर जिन पर तूने इनाम किया। अब ये किन लोगों पर इनाम किया अल्लाह तबारक व तआला ने, ये समझ नहीं आ रही थी। और फिर आगे इसकी तफसील बयान करते हुए फरमाया कि शहीदों पे इनाम किया, पैगम्बरों पे इनाम किया नंबर 1। नंबर 2 सिद्दीकीन पे, पैगम्बर वो जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मबूस किए गए। फिर सिद्दीकीन पे इनाम किया अल्लाह तबारक व तआला ने। सिद्दीकीन वो जिन्होंने अंबिया इकराम की पहली फुर्सत में तस्दीक की और बग़ैर किलो काल अंबिया इकराम को मान लिया। और उसके बाद तीसरे दर्जे पे अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया किसी पर तो वो शहीदों पे किया, वो जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में जान कुर्बान करने वाले हैं उन पर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम हुआ। और उनमें सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अगर किसी का रुतबा है तो वह हज़रत इमाम हुसैन का है। फिर सालिहीन पे अल्लाह तबारक व तआला ने
इनाम किया। लेकिन अगर शहादत के रुतबे की बात की जाए तो बिला शुबा इससे इनकार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया कि ये इन्हें मुर्दा मत कहो, ये ज़िंदा है और इन्हें मेरे यहाँ रिज़्क़ दिया जा रहा है, लेकिन ला यशउरून, तुम इसका शऊर नहीं रखते, तुम इनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकती, इन पर बहस मुबासा नहीं कर सकते। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने इसका चैप्टर ख़त्म कर दिया कि जिन लोगों को जिस चीज़ का शऊर ही नहीं है उसके बारे में बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। अहले इल्म को चाहिए कि इससे गुरेज करें। लेकिन मौजूदा दौर में जो सोग बनाने की ज़रूरत है, इस पर बहरहाल गौर किया जाए। पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि कोई भी मुस्लिम की जब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जिसकी किसी बड़े छोटे की वफ़ात होती है या बड़े की रहलत कहते हैं उसको, रहलत होती है, तो ये आर्जी ज़िंदगी है और इससे अल्लाह तबारक व तआला छुटकारा दे के अपनी तरफ उस बंदे को बुलाते हैं। तो वो अगर नेक है तो उस पर सोग बनाने की ज़रूरत नहीं बनती। और अल्लाह तबारक व तआला ने सोग बनाने का हुक्म भी सिर्फ 3 दिन के लिए दिया है। 3 दिन से ज़्यादा सोग बनाना हराम है। हाँ, बेवा औरत को 4 महीने 10 दिन की इद्दत का हुक्म है, उसके अलावा किसी को 3 दिन से ज़्यादा का सोग बनाने का हुक्म नहीं है। फिर अगर दूसरी बार सोची जाए तो अगर वो शहीद हो गए और उनको वहाँ अच्छा रुतबा और मुकाम और स्टेटस दिया गया तो फिर सोग बना के हम क्या साबित करने चाहते हैं कि क्या हम उनको दी गई नेमतों पे, उनको दिए गए स्टेटस पे हम खुश नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको इनाम दिए उन पे हम खुश हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में दुआ सिखा दी कि अल्लाह तू हमें उन लोगों में से कर जिन पर तूने इनाम किया। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ सिखा दी कि उनमें से कर जिन पर तूने इनाम किया, तो हम उस पर सोग मना रहे हैं और रो पीट रहे, ये कहीं इस्लाम के करीब तरीन बात नहीं है। बहरहाल हर फ़िरके का अपना ताल्लुक़। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को कबूल करते हुए हमें उन लोगों में शामिल करे अनअमत अलैहिम जिन पर उसने इनाम फरमाया। मेरे चैनल को देखें समझें और इसे लाइक करें और शेयर करें। मदद करें तावन अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें। और अगर आप समझते हैं कि ये काम नेकी और अच्छाई का है तो तावन करें। अगर समझते नहीं है तो फिर मुझे राय दें, मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।